वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हम करा रहे हैं बेसिक कोर्स पिटमैन न्यू एरा से, जिसमें अब लगातार हम स्टार्टिंग में डिक्टेट ही करते हैं, आपको लिखना होता है बेसिक कोर्स की एक्सरसाइजेज। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 का कुछ पार्ट एक बाकी है, वो कराएंगे आज। उससे पहले डिक्टेशन देंगे। पिछली क्लास में हमने 52 तक डिक्टेट किया था, अब 53 से हम डिक्टेट कर रहे हैं। वही लगभग 15 मिनट के करीब डिक्टेशन होगी, और जितनी भी इसमें आती हैं तो आपको लिखना है, ध्यान से लिखना है। और कुछ अगर वर्ड छूटते हैं तो उसको बाद में दोबारा कीजिए। और इंडिकेशन आपको कोमे का मिलेगा, अपने आप लगाना है आपको। फुल स्टॉप का मिलेगा, अपने आप लगाना। क्वेश्चन मार्क का अपने आप प्लेसमेंट करना है सेंटेंस से, और बार बार लिखने से ही आप जल्दी कामयाब होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 53। रेडी, स्टार्ट। डू यू नो दैट वी सेल गुड टायर्स? It is not necessary for you to buy tires in a repair shop, for our store now carries them. You can buy them when you are in the store, just as you would select silks or something for your house. These tires are good value and they sell rapidly. Each of them carries our guarantee. Next, exercise number 54. It is quite some time since you bought anything in this store. I am writing to you myself because I should be sorry to lose your custom. It may be that we have offended you in some way. If this is the case, I hope you will write to me. Our service and our way of doing business are things which we boast about. It would be a pity to stay away because of something which could be easily remedied, and you should not hesitate to write to me. Let me know the cause. Next, exercise number 55. Until quite recently, the volume of our business in the south was quite small, but since last November we have had an office in Fulham, and the volume of sales
risen steadily. Sales in this territory for January and February are the best in the history of the firm. In these 2 months, we have sold twice as much in the south as we sold last year. The fact that this is almost as much as we have sold in Manchester shows that our new policy is entirely justified. We feel that the result of our new policy is most satisfactory. The race is not always to the swift. Sometimes too much haste makes for less speed. Never waste time by having to do the same job twice. This is useful advice, and if you will follow it, it will assist you to be successful. Write your notes accurately and neatly so that not only you but anybody else can read them easily. Next, exercise number 56. Recently, we wrote to you and stated that unless we received your check by 16th February, we should have to ask our lawyer to take steps to force you to pay the bill you owe us. Unfortunately, you have not answered our note, and now we must inform you that we have asked our lawyer to go ahead and follow the usual methods to make you pay. We are exceedingly sorry to have to do so, but evidently this is the only way in which we can secure our money. We recently feel that we have acted quite fairly with you, and as we have said, this seems to be the only thing
left for us to do. You will mail your check without the slightest delay. You can avoid heavy costs, and we advise you to do so as soon as you receive this. Exercise number 57. I think that the way in which we store goods at the factory is not altogether satisfactory. It seems to me that the fire insurance rates are now quite high, and I feel that with some changes in the storerooms, reduced rates might be expected. I should like you to inspect the rooms as soon as possible, and if as a result of your inspection you think that our methods with regard to the storage of goods are unsatisfactory, I wish you would suggest any changes which could be put into effect. I wish you would let me have the different insurance policies now in force, together with the details of the scale on which the insurance rates are based, so that I can make an analysis of the annual cost. तो स्टूडेंट्स ये 57 तक डिक्टेट हमने किया इस क्लास में. अब हम आपको रिमेनिंग पार्ट कराएंगे जो हमारा 26 क्लास में था 14th चैप्टर का, वो हिस्सा कराएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर 15 इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका, जिसमें नए रूल आएंगे. स्टूडेंट्स 14 चैप्टर जो हमने 26 क्लास में बताया था उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी है. पेज नंबर 123 पिटमैन पे आप आइए, और पिटमैन न्यूएरा पे इसमें लिखा है ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट. सिंपल सा रूल है कि वेयर ए मीडियल टी इज ओनली लाइट साउंडेड आफ्टर एस सर्कल इट मे बी समटाइम बी ओमिटेड एज ए. कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे हमारे मिडल में एस सर्कल आएगा और उसके बाद एस के साउंड जो लाइट है, तो उसको हम बीच में लिखते नहीं है, ओमिट कर देते हैं टी को. एस के साथ टी आता है मिडिल में, तो उस टी के साउंड को हम ओमिट कर देते हैं, बिकॉज वो बनाने में भी हमें दिक्कत पड़ती है. जैसे वर्ड आपका पोस्टपोन, इसने कहा कि लाइट साउंड है और टी ए बीच में आया है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, बिकॉज आप इसको लिखने की कोशिश भी करोगे तो
ये एस टी लूप के रूप में लिखोगे या टी, तो उसमें ज्यादा बड़ी आउटलाइन बन रही है, तो ये हमें इजीएस्ट आउटलाइन देगा कि बीच का टी और एस सर्कल के साथ, तो हम उसको ओमिट कर देते हैं, लिखते नहीं है, पढ़ते हैं। टी को हम लिखते नहीं है। जैसे इसमें है मोस्टली वर्ड, देखिए मोस्टली, एस के बाद हम एस सर्कल यूज कर रहे हैं, फिर टी है, तो इसको मोस्टली लिखेंगे बिकॉज बीच में एस टी लूप बनेगा नहीं और लाइट साउंड है, इसलिए हम उसको मोस्टली ऐसे पढ़ेंगे। इसको टी लाइट साउंड है, ओमिट कर दिया, सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। ये वर्ड एग्जांपल्स में है, सारे आपको करने हैं। एडजस्टमेंट भी है इसमें, आपका इंस्टीट्यूट भी इसमें है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, तो पोज ऑफिस लिखा है, तो टी को हमें पढ़ना है। तो इन वर्ड्स की प्रैक्टिस 5-5, 7-7 लाइन प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। और इसके बाद है अदर लाइटली साउंडेड कॉन्सोनेंट में समटाइम भी ओमिटेड। इस टी के अलावा, मिडिल टी के अलावा, जो एस सर्कल के साथ में आ रहा है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पे हमें लाइट साउंड के कॉन्सोनेंट के, पर्टिकुलर उसमें तो टी था, और इन और कुछ वर्ड्स में हम ओमिट करते हैं लाइट साउंड वाले कॉन्सोनेंट को। जैसे वर्ड है एनक्शियस, के ओमिट कर दिया, एनक्शियस, इसमें के हमने नहीं बनाया। और जैसे है इसमें डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, एस टी लूप के साथ टी, के हमने नहीं बनाया, डिस्टिंक्ट। प्रॉम्प्ट, पी नहीं बनाया, प्रॉम्प्ट, छोड़ दिया पी, प्रॉम्प्ट, क्योंकि पी लाइट साउंड है, उसको हमने नहीं बनाया। स्टैम्प, वर्ड है स्टैम्प, स्टैम्प तो बन गया, लेकिन स्टैम्प आएगा, तो एस टी लूप के साथ हमने हालविंग कर ली और पी को नहीं बनाया, वो लाइट साउंड है। तो इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। और आगे कुछ स्पीड में ऐसे वर्ड आएंगे जहां पे हम ओमिट करते हैं। एंक्सियस बताया था, एंक्सियसली अगर आ जाएगा तो आप वही है, उसमें भी के ओमिट हमारा हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 124, 123 से स्टार्ट है एक्सरसाइज नंबर 114, उसके बाद 124 पे 115 और 116 की आउटलाइन आपको पहले बनानी है, फिर 5 टाइम करना है, और 14 और 15 भी आपको 5 टाइम ही करनी है। रजिस्टर में एक लाइन में जहाँ तक आता है उसको 5 बार रिपीट करोगे, फिर उसको आप इंग्लिश एक बार लिखनी है, और मिनिमम मैं कहता हूँ 5 टाइम, मैक्सिमम आप ज़्यादा कीजिए तो जल्दी शॉर्टेड आपकी होगी और बेस्ट होगी। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। सिंपल रूल है, हमने शुरू में आपको रूल बताए थे हालविंग। हालविंग क्या था कि हम कॉन्सोनेंट को हाफ कर रहे थे, कॉन्सोनेंट की लेंथ को हमने आधा कर दिया था, तो उसमें टी एंड डी का एडिशन हो गया था, हमने बताया था हालविंग। हाफ करने से हमारा टी और डी का एडिशन हो गया था, जैसे आप करते तो टी या टी हमारा, वो रूल हम सारे पहले बता चुके हैं। इसमें यही है हालविंग का। देयर आर ए फ्यू एडिशनल एप्लीकेशंस फॉर द हालविंग प्रिंसिपल्स। कुछ एडिशनल रूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं कि आपको उसमें हालविंग में कुछ चेंज किया गया है, वो स्टिल बताया गया है, वो हमारी सुविधा के लिए बताया गया है, क्योंकि उन वर्ड्स में हम हालविंग को उसी रूल से फॉलो करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ और वर्ड उस जैसा हो जाता है तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले द स्ट्रोक एम एन एंड आर हाल्ड, हमारी सुविधा के लिए बता रहा है कि जो एम और एन हमारा स्ट्रोक है
उसको हम जब आधा करते हैं तो हाफ करने से, हालवी करने से टी या डी का एडिशन हो रहा था। लेकिन अभी कहते हैं इसमें चेंज हो जाएगा, आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि कहाँ टी होगा और कहाँ डी होगा। ये कहता है द स्टॉक एम एन एंड आर हार्ड एंड थिकन्ड टू इंडिकेट ए फॉलोइंग डी। ये कहता है कि एम और एन को हालवी कर रहे हो आप, लेकिन उसको थिक डार्क कर दीजिए, एम या एन को डार्क साथ में कीजिए दिए तो उसमें कन्फर्म है कि डी का एडिशन होगा। लाइक मेड वर्ड है, इसको डार्क कर दिया, डार्क करने से क्या हुआ, कन्फर्म है टी आएगा। जबकि मेट वर्ड आएगा, मेट वर्ड आएगा तो उसमें क्या होगा, लाइट रखेंगे तो ये कन्फर्म है कि उसमें पर टी है, लाइट है तो टी है। हमने डार्क जानबूझ के किया है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो उसमें डी ही जुड़ेगा। ऐसे एन के लिए बताता है कि एन भी साथ में हम डार्क करेंगे तो उसमें भी डी जुड़ेगा। नीड, अब बहुत सारे वर्ड है इनकी हालविंग करने के, आपने जो लाइट में हमने बहुत सारे वर्ड है जैसे हो जाते हैं नीड, अभी कहता है इनको डार्क कर दिया तो कन्फर्म है डी जुड़ेगा। जबकि हमारा नोट था लाइट रखो, ठीक है। अगर ये रूल हम लागू नहीं, ये रूल नहीं अगर इसमें होता तो हमारा लाइट होता तो इसी में टी जुड़ता और इसी में डी जुड़ता। तो कंपैरिजन बहुत सारे वर्ड है, नो है, नोट है और नीड है, ये नीड है और आगे नीट वर्ड आएगा। बहुत सारे वर्ड है जो हमें एक जैसे मिल जाएंगे। तो इसमें चेंज होगा कि एम और एन को हम डार्क करते हैं साथ में हालवी करते तो कन्फर्म डी ही जुड़ेगा। टी के लिए लाइट यूज होंगे, एम या जो पहले हम कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं डाउनवर्ड एल एंड डाउनवर्ड आर हार्ड एंड थिकन टू इंडिकेट ए फॉलोइंग डी। अब ये देखो हमने एल को और आर को दोनों फॉर्म्स में यूज किया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अभी कहते हैं कि एल को और आर को, लेकिन दोनों डाउनवर्ड फॉर्म वाले, जहां हम डाउनवर्ड आर और एल यूज कर रहे हैं प्लस में थिकन डार्क कर देंगे। डार्क करने से उसमें कन्फर्म है डी का एडिशन ही होगा, टी का नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड्स में जहां पे हमें आर के साथ हालवी करनी पड़ रही है, अपवर्ड में डाउनवर्ड में, तो उसमें हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि कहाँ टी है और कहाँ डी है। इसका अपवाद थोड़ा इससे अगले रूल में आएगा कि टी होगा तो कैसे और डी होगा तो कैसे, स्पेशल बता रहे डाउनवर्ड में होगा डार्क करेंगे तो। जैसे वर्ड है आपका बिल्ड, अब आपने वर्ड बिल्ड डार्क कर दिया, डार्क करने से हालविंग हुई है, इसका मतलब आपका ये डी जुड़ा। बिल्ट आएगा, वैसे बिल्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है लेकिन इस तरह से मिलते जुलते आएंगे, वहां पे टी होगा लेकिन उसके लिए आगे एक स्पेशल भी आ जाएगा कि वहां पे डाउनवर्ड ना अपवर्ड ही यूज होगा। अभी रूल इसमें आएगा आगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि जहां पे डाउनवर्ड एल या डाउनवर्ड आर हमें हालविंग करके डार्क करेंगे जब कि उसमें अगर डी का एडिशन होगा। जैसे यील्ड है, यील्ड डार्क, यील्ड, फील्ड, फील्ड डार्क। तो आपको ये समझना होगा कि जहां डाउनवर्ड और आर और डाउनवर्ड एल डी का एडिशन मांगता है वहां पे हमें डार्क यूज करना होगा। इसके बाद आप आइए, शॉर्ट फॉर्म इसमें कोई नहीं है, एक्सरसाइज नंबर 117 वही 5 टाइम करनी है। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर, उसके बाद जो अभी मैं जिक्र कर रहा था आपका पेज नंबर 128 पे आ जाइए। हमने डाउनवर्ड में एल में और आर में डी के एडिशन के लिए डार्क कर दिया। अब ये कहता है इस पे फाइनल एल टी इज रिप्रेजेंट बाई एल अपवर्ड और फाइनल आर टी इज जनरली एक्सप्रेस बाई आर अपवर्ड। ये ध्यान रखना कि डाउनवर्ड में हमने डाउनवर्ड में इसमें एल और आर में जो डाउनवर्ड फॉर्म्स थी उसमें डी का एडिशन किया है डार्क के साथ, डार्क कर दिया। अब ये कहता है फाइनल किसी भी वर्ड के लास्ट में एल टी और आर टी आता है, फाइनल एल टी प्लस आर टी, तो यानी कि इसमें टी का एडिशन हो रहा है एल के साथ और आर के साथ, ठीक है।
ये इसमें टी का एडिशन है तो ये कहता है अपवर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे अभी हमने बिल्ड आपको वर्ड बताया था, जबकि इसमें बिल्ट वर्ड आया, बिल्ट बिल्ट, तो आपने अपवर्ड में हालवी करनी है और लाइट ही रखना है। लाइट भी है अपवर्ड भी है, दोनों कंफ्यूजन दूर हो गई। डार्क है, डार्क था डाउन था तो टी जुड़ा, लाइट है तो टी जुड़ा, एल के साथ टी आएगा अपवर्ड में आएगा फाइनल, और ऐसे आर के साथ आएगा लाइट तो भी आपको टी के एडिशन के लिए अपवर्ड आर ही यूज करना है। सपोर्ट, आर के लिए बताता हूं सपोर्ट, आर आधा लाइट रहेगा क्योंकि टी का एडिशन फाइनल एल टी और आर टी आपका लाइट रहेगा, एल बी और आर बी। ध्यान से देखिए इसमें और वर्ड है रिपोर्ट, आर आधा, इसका मतलब है कि अपवर्ड फाइनल आएगा तो टी के लिए लाइट रहेगा, अपवर्ड फाइनल एल के साथ टी आएगा तो वो भी लाइट रहेगा। अगला रूल है व्हेन ए वॉवल्स कम्स बिटवीन एल डी और आर डी, जो पीछे रूल बताया था हमने, एल को डार्क, एल और आर को हमने डाउनवर्ड को डार्क के लिए यूज किया हाल में डी के एडिशन के लिए। अब ये बताता है कि अगर जो हमने पीछे एल डी हो गया हमारा और आर डी हाल होगी तो एल डी और आर डी पे कंफर्म हो गया, लेकिन ये कहता है अगर किसी वर्ड के में एल डी और आर डी के बीच में वावल आएगा तो आप ये फॉर्म यूज नहीं कर सकते जो हमने अभी बताई थी। ये फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते डार्क के साथ डी के लिए। बीच में वावल आएगा तो आपको उसके लिए पूरे स्टॉप बनाने पड़ेंगे, जैसे कैरिड, तो उसके लिए आपको आर भी बनाना पड़ेगा और डी भी बनाना पड़ेगा। डिलेड, एल बी और डी भी बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में जब वावल आया तो आप उसमें यूज नहीं करते। मैरिड, आर डी, वो डाउनवर्ड आर डार्क नहीं यूज करोगे। मैरिड, कंफर्म है, आर के वो बीच में वावल आया तो आप पूरे स्टॉप यूज ही करेंगे। उसके बाद एक सिंपल और बहुत जरूरी रूल है, उसमें ये बताया गया है कि आप सबको मैं अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि वो रूल थोड़ा डीपली बताना पड़ेगा। उसी रूल को की वजह से बहुत सारे बच्चे स्पीड पे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।